کراچی سے خیبر تک کے سفر کا کریں گے آغاز۔ اس سفر میں ہمارے کون سے اہم پڑاؤ ہوں گے، جان لیتے ہیں ہیڈ لائنز میں۔ جنگ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی جانب سے تربیتی مشقوں کا عملی مظاہرہ۔ گجرانوالہ میں چاولوں پر دہی ڈال کر کھانے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد بے ہوش، جبکہ زہریلی سوئیاں کھانے سے نند بھاوج اور بچی کی حالت غیر ہو گئی۔ پنجاب بھر میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال آج 19ویں روز بھی جاری۔ گجرانوالہ میں 7 ہاؤس آفیسرز ڈیوٹی پر غیر حاضری پر برطرف۔ سیالکوٹ میں شہری کو بے گناہ تشدد کا نشانہ بنانے پر مشتعل افراد کا پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ اسٹریٹ کرائم اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایلیٹ فورس کے اراکین اہم کردار ادا کریں گے۔ آئی جی سندھ پولیس مشتاق شاہ کا کراچی میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ جیکب آباد میں سمیڈا کی جانب سے کاروبار کے لیے 81 افراد میں 2,43,000 کے چیکس تقسیم۔ صدر زرداری لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مستقل کرنے کے احکامات جاری کریں۔ سکھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پریس کانفرنس میں مطالبہ۔ کوئٹہ میں علماء کرام اور 7 دیگر افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کو اعتماد میں لے کر ناٹو سپلائی بحال کی گئی۔ پشاور میں وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے سرسبز سرزمین پنجاب سے۔ جنگ میں ممکنہ سیلاب کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے ہیڈ تریمو پر تربیتی مشقوں کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد ریسکیو سٹاف کو سیلاب زدگان کی جان و مال حفاظت کرنے اور انہیں بروقت امداد پہنچانے کے لیے فلڈ ایریا سے ریسکیو کرنے کی اعلیٰ مہارتوں کی ٹریننگ دینا تھا۔ سیلاب کے دوران زیادہ سے زیادہ جانی و مالی نقصان سے عوام الناس کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس پروگرام میں اعلیٰ شخصیات کے علاوہ ای ڈی او ہیلتھ، ای ڈی او ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر آفیسر جھنگ، غیر سرکاری تنظیموں اور میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر 1122 ڈاکٹر طارق سعید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو 1122 کی یہ کوششیں ممکنہ سیلاب کے دوران متاثرین کو بچانے کے لیے معاون قدم ثابت ہوں گی۔ شرکاء نے ریسکیو جھنگ کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ گجرانوالہ میں چاولوں پر دہی ڈال کر کھانے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد بے ہوش ہو گئے، جبکہ زہریلی سوئیاں کھانے سے نند بھاوج اور ایک بچی کی حالت خیر ہے۔ عالم چوک کے رہائشی محنت کش افضل اور اس کی بیٹی اللہ رکھی صوفیہ اور بیٹے احمد عبد الرحمان سمیت گھر کے 7 افراد نے دکان سے دہی منگوا کر چاولوں پر ڈال کر کھایا تو تمام افراد کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی، جنہیں محلہ داروں کی اطلاع پر بے ہوشی کی حالت میں ریسکیو اہلکاروں نے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا ہے۔ دوسرے واقعے میں قلعہ میاں سنگھ کی رہائشی رخسانہ بی بی نے گھر میں سوئیاں پکائیں، جنہیں کھاتے ہی رخسانہ بی بی، اس کی 2 سالہ بیٹی مقدس اور نند سغرا بی بی کی حالت خیر ہو گئی، جنہیں بے ہوشی کی حالت میں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال آج 19ویں روز بھی جاری رہی۔ وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہ جب تک گرفتار ڈاکٹرز کو رہا نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ ادھر گجرانوالہ میں 7 ہاؤس آفیسرز کو ڈیوٹی پر نہ آنے پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں نوجوان مسیحا آج بھی ڈیوٹیوں پر سے غیر حاضر ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز اور پاک فوج کے ڈاکٹرز اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، تاہم ان کی تعداد مریضوں کے علاج کے لیے ناکافی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز نے کچھ ساتھیوں کی رہائی کے بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کام شروع کر دیا ہے، لیکن دیگر شعبات بند پڑے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اپنے مطالبات پر سختی سے قائم ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ساتھی ڈاکٹروں کی رہائی اور مقدمات کے خاتمے کے بعد ہی صرف ایمرجنسی شعبے میں کام شروع کیا جائے گا۔
मज़ीद खबरें इस वक्फे के बाद। लाहौर की मकामी अदालत ने कमसिन फहद की हालत के इल्जाम में गिरफ्तार 4 यंग डॉक्टर्स की जिस्मानी रिमांड में 9 जुलाई तक तौसीह कर दी है। चारों मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में सिविल जज नकीम शहजाद की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जय वक़ुआ पर ताला लगा है और अभी तक बच्चे को लगी ड्रीप भी बरामद नहीं हो सकी है, लिहाजा मुल्जिमान को मजीद 10 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए। मुल्जिमान के वकील ने इल्जामात की तरदीद करते हुए इन्हें बेबुनियाद करार दिया है। अदालती इस्तफ्तार पर मुल्जिम डॉक्टर तजम्मुल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चा ड्रिप उतारने से पहले ही जा बहक हो चुका था। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चारों मुल्जिमान डॉक्टर तजम्मुल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मतलूब और डॉक्टर उस्मान की जिस्मानी रिमांड में 9 जुलाई तक की तौसीह कर दी है। अदालत ने पुलिस को हिदायत की है कि आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाए। हाफिजाबाद में दरख्त से पत्ते तोड़ने की पादाश में तालिब इल्म ने अपने वालिद के हमरा उस्ताद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। डंडों से मारपीट के बायस उस्ताद की पसलियां तक तोड़ दी। हाफिजाबाद में मकामी स्कूल टीचर इरफानुल्लाह रेलवे कॉलोनी में अपनी बकरी के लिए दरख्त से पत्ते तोड़ रहा था कि इसकी अपने शागिर्द मोहम्मद आसिफ, इसके वालिद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर मलिक मोहम्मद नवाज और दीगर अफराद से तल्ख कलामी हो गई, जो बाद में शिद्दत इख्तियार कर गई और इनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इस स्टेशन मास्टर और बेटे शाहिद ने टीचर इरफानुल्लाह को कमरे में बंद करके डंडों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इसकी एक पसली टूट गई है। इरफानुल्लाह को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, जबकि पुलिस की जानिब से अभी तक मुल्जिमान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सियालकोट में शहरियों ने पुलिस के खिलाफ डीपीओ ऑफिस का घेराव करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुरादपुर की चौकी मॉडल टाउन के एहलकारों ने नाजायज तौर पर गिरफ्तार करने के बाद बेगुनाह शहरी अमानत अली को तशद्दुद का निशाना बनाया और रिश्वत लेने के बाद छोड़ दिया। ताहम मुजाहिरीन आला हुक्काम की जानिब से जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म करके पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। बक्कर में 30 साल से कायम अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को आज भी पूरा नहीं किया जा सका। डॉक्टरों की कमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बक्कर में 1982 में कायम होने वाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खिलोरकोट आज भी इलाका मकीनों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने में नाकाम ही है। 20 करोड़ की लागत से तैयार किए जाने वाले इस अस्पताल में डॉक्टरों की शदीद कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में 13 डॉक्टरों की सीटें खाली हैं। अद्वियात की कमी के साथ साथ अस्पताल में एक भी लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है, जबकि दीगर मुलाजमीन भी ना होने के बराबर है, जिसके बायस लोग दूर दराज के अस्पतालों से धक्के खाते रहते हैं। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खिलोरकोट में डॉक्टरों और अद्वियात की कमी को फौरी तौर पर दूर किया जाए। सिलसिला कादरिया के नामवर बुजुर्ग हामिद शमसुद्दीन गिलानी के 26वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। सजादा नशीन मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी ने इज्तिमाई दुआ कराई। इस हवाले से अब्दुल गनी रिपोर्ट कर रहे हैं। उच्च शरीफ की अजमत और शोहरत का असल सबब सूफिया कराम के वो मुकद्दस अफराद हैं जिन्होंने शहर को तसव्वुफ की एक अजीम दरसगाह में तब्दील कर दिया। सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हजरत गौस बंदगी की क़यादत में सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, मूसा पाक शहीद और मखदूम हामिद शमसुद्दीन गिलानी दीनी खिदमात सर अंजाम देने वाली अपने अहद की मारूफ शख्सियात हैं। हामिद शमसुद्दीन गिलानी 1919 को उच्च शरीफ में पैदा हुए। 1940 में मुस्लिम लीग में शामिल होकर सियासी जिंदगी का आगाज करके क़याम पाकिस्तान के लिए भी भरपूर किरदार अदा किया। 1964 और 1977 में पंजाब असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। उच्च शरीफ में बॉयज गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस, अस्पताल, रेस्ट हाउस समेत कई सरकारी इदारों का कयाम उनकी अवामी खिदमात का सबूत है। 14 शाबान बामुताबिक 24 अप्रैल 1986 में जहान फानी से रुखसत हो गए, जिनकी 26वीं बरसी की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज को अर्क के गुलाब से गुस्ल देने और चादर चढ़ाने की रस्म से सज्जादा नशीन मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी, मखदूम सैयद जफर हसन गिलानी और वली अहद मखदूम ज़ादा सैयद उमर रज़ा गिलानी ने किया। सिलसिला कादरिया के हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। खत्म शरीफ की रस्म ज़ेर सदारत सज्जादा नशीन मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर नात खानों ने शिरकत की। मुल्की सलामती के लिए सज्जादा नशीन ने दुआ कराई। कैमरा मैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज उच्च शरीफ।
पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि 8 जुलाई को अमराज कल्ब के खिलाफ होने वाली वॉक मरी की सकाफत का हिस्सा बनती जा रही है। अमराज कल्ब के खिलाफ सरगर्म तंजीम पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मरी में होने वाली 22वीं वॉक के हवाले से अहदेदारान ने मरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरी की ये वॉक अमराज कल्ब से बचाव और आगाही से मुताल्लिक अब मरी की सकाफती त्यौहार बनती जा रही है। अहदेदारान का कहना था कि 8 जुलाई को दोपहर 2 बजे टाखाना चौक से शुरू होने वाली इस वॉक के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस मौके पर आवाम को अमराज कल्ब से बचने के लिए शऊर व आगाही के पैगामात और लेक्चर दिए जाएंगे। वॉक में मकामी स्कूलों के बच्चे, रफ़ाई तंजीमों के अरकान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। नारोवाल में आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हाफिज अब्दुल कारी अल्लामा पीर सैयद अफजल शाह जमाती मुख्तसर अल्लारत के बाद इंतकाल कर गए हैं। अल्लामा पीर सैयद अफजल शाह जमाती बरसगीर पाक व हिंद के अजीम बुजुर्ग और रूहानी पेशवा हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब लासानी के पोते थे। वो उस्ताना आलिया अमीर मिल्लत अलीपुर सैयदा के मरकजी शहजादा नशीन भी थे। सैयद अफजल शाह के इंतकाल के बाद इलाके की फ़ज़ा सोगवार हो गई है। इनकी नमाज जनाजा में मुल्क भर से सैकड़ों मुरीदैन ने शिरकत की और मरहूम के ईसाल सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की गई। मज़ीद खबरों से कबल यहाँ लेंगे एक ब्रेक। सियालकोट में इदारा मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम होने वाली मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान आलम इस्लाम की हकीकी मानों में नुमाइंदगी करेगा। हम दुनिया भर में रहने वाले लोगों को मोहब्बत व आतशी और बाहमी भाईचारे का सबक देते हैं। हमारा मकसद दीन बरहक की पैरवी है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के बेहतरीन तशख़्ख़ुस को उजागर करना वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है और इस मकसद के लिए इदारे के तहत फ़िक्री नशस्तें मुनक़्क़िद की जा रही हैं, जिनका मकसद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत को दिलों में कायम रखना और नौए इंसानी तक कुरान और सुन्नत की तफासीर को पहुंचाना है। खानपुर के नवाही कस्बे से खबर देंगे आपको, जहां संगदिल खाविंद ने साथियों के हमराह मिलकर बीवी को तेज धार आले से जख्मी करके खुद भाग गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके इस हवाले से रिपोर्ट भी कर रहे हैं मंजर नवाज अंजुम। खानपुर के नवाही चक 21 में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां खामंद ही अपनी बीवी का दुश्मन बन गया और साथियों के हमरा तेज धार आले के साथ नाजिया बीबी पर कातलाना हमला किया और मुलजिम साथियों के हमरा फरार होने में कामयाब हो गया। गुरसा और गर्दोनवा के मकीनों के एहतजाज करने के बाद थाना सदर खानपुर पुलिस ने खामंद अल्लाह नवाज और दीगर नामजद मुलजमान को गिरफ्तार किया और बाद में बासर अफराद की मुदाखलत पर पुलिस ने मुबैना तौर पर भारी रकम लेकर नामजद मुलजमान छोड़ दिए। नल्ला जुलम किते ने काते कुहाड़े कप्पी ने पिस्तौल लिखाए ने असे को उसे डाढे जुलम किते ने से ना के करो भला असा डाढे औखे थे से मां कतल का पसत कमा देवे। थाना सदर खानपुर में नाजिया बीबी के भाई अब्दुस्तार की मुद्दईयत पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने मुलजिम अल्लाह नवाज को गिरफ्तार किया, जहां मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद पुलिस मजीद मुलजमान गिरफ्तार करने से गुरेजा है। आधा कारोबार उठी कितने मैं बर्दाश्त नहीं थी। मैं तुम्हारे जवान जरा भाडे सदी कमंद भाडे हो मैं वाला चुप करते हैं बटी की मैं कुमार देना दिया धारा लिखूं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर के बाहर पड़ी 22 साला नाजिया बीबी, उसके अहले खाना और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इस वाक़ये की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। नाजिया बीबी और इसके अहले खाना अल्लाह नवाज और उसके साथियों के जुल्म का शिकार होकर इंसाफ के लिए मुंतजिर। इनको इंसाफ देने वाली पुलिस मुलजमान की हमनवा बन चुकी है। इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए खानपुर में पेश आने वाला ये वाकया काबिल फिक्र बात है। मजहर नवाज अंजुम, वक्त न्यूज, खानपुर, रहीम यार खान।
उधर गुजरांवाला में पुलिस चौकी से 2 खतरनाक डाकू फरार, जबकि चौकी मुहर्रर भी लापता हो गया है। डाकुओं और मुहर्रर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुजरांवाला में चौकी फ्रांसिस आबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज डकैती की वारदात के दौरान 2 खतरनाक मुलजिमान इलियास और मोहसिन फ्रांसिस आबाद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दोनों मुलजिमान चौकी के कमरे में बनी हवालात में बंद थे कि वहां हथकड़ियां खोलकर फरार हो गए। इस हवाले से चौकी इंचार्ज जुबैर डार का कहना है कि मुलाजिमीन मामूल की गश्त पर थे, जबकि चौकी मुहर्रिर बिशारत मुलजिमान की निगरानी के लिए चौकी पर मौजूद था। जब मुलाजिमीन गश्त से वापस आए तो हवालात का दरवाजा खुला था। मुलजिमान के अलावा चौकी मुहर्रिर भी गायब है, जिसके बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक चौकी मुहर्रिर और फरार होने वाले दोनों डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ विमेन विंग सियालकोट की रहनुमा आलिया हिना ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई नौजवानों और अवाम की ताकत से इख्तिदार में आकर मौजूदा बहरानों के खात्मे के लिए अमली तौर पर काम करेगी। नारोवाल के मौजा मधा अफगाना में चिल्ड्रन राइट्स वेलफेयर की जानिब से दूसरे सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुल्क में इनकलाब नौजवानों के जरिए लाना है, क्योंकि आज का बच्चा कल का पाकिस्तान है। चेयरमैन चिल्ड्रन राइट्स वेलफेयर आती खान बाबा ने कहा कि इनकी तंजीम बच्चों के लिए 160 मिलियन रुपए की खतीर रकम से काम कर रही है, जिसके तहत 2 कॉलेजों और 1 स्कूल में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है और बहुत जल्द इसका दायरा कार वसी करके पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाएगा। बादशाह जीतने वाली टीम को मोटरसाइकिल और नकद इनाम दिया गया। इस मौके पर साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार नारोवाल खालिद सिंधु, एमपीए आरिफ खान और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वफाकी दारुल हुकूमत और इसके जुड़वां शहर रावलपिंडी में मानसून के दौरान सैलाब से बचाव के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 35 मकामात को हसास करार दे दिया गया है। मानसून के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतजामिया और सीडीए के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जबकि इस्लामाबाद के 35 मकामात को हसास करार दे दिया गया है। सीडीए हेडक्वार्टर्स और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली के दफ्तर में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए गए हैं, जबकि रावल और असेंबली डैम के रास्तों पर आबादियों के मकीनों को अलर्ट कर दिया गया है। उधर रावलपिंडी में नाला लई के इर्द गिर्द आबाद अफराद को भी बचाव के लिए हिकमत अमली से आगाह किया गया है। रुख करेंगे सिंध धरती का। आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक शाह ने कहा है कि क्रिमिनल बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। अमन और अमान के कायम, स्ट्रीट क्राइम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एलीट फोर्स के अरकान अहम किरदार अदा करें। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आईजी सिंध का कहना था कि पुलिस एहलकारों को जदीद ट्रेनिंग और असलहा देकर आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि एलीट फोर्स के जवान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए यकीनी बनाएंगे। उनका कहना था कि पासिंग आउट परेड में पास आउट होने वाले एलीट और एलीट फोर्सेस के एहलकारों को इंश्योरेंस और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। मुश्ताक शाह ने कहा कि पहले से हर चीज़ में बहुत बेहतरी आई है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मेरे बाद भी बहुत अच्छे पुलिस अफसरान हैं जो कराची की सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि पुलिस ने दहशतगर्दी का कोई हद कंट्रोल कर लिया है। पासिंग आउट परेड में एलीट के 3 खवातीन समेत जवानों ने, जबकि 374 एलीट फोर्स में खवातीन समेत 229 जवानों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के ज़िला सदर गुलाम कादिर मीरानी ने कहा है कि माहीगीरों को 4 साल गुजरने के बावजूद लाइसेंस जारी नहीं किए गए, जिसके बायस इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। सखर में रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत माहीगीरों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ दरियाओं से वडेरों का कब्जा खत्म कराए। उधर मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम किए गए तो तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने सूबाई वजीर फिशरीज से भी मुतालबा किया कि मल्लाह बिरादरी को हुकूमत तमाम सहूलियात फराहम करे ताकि वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त तो कर सकें। कराची में रेंजर्स ने लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में कार्रवाई करते हुए एक मगवी को बाजियाब करा लिया, जबकि 4 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर्स हुक्काम के मुताबिक मकामी ताजिर को 3 जुलाई को अगवा किया गया था, जिसकी रिहाई के लिए फरहान मोटा नामी गैंगस्टर ने 25 लाख रुपए तावान मांगा था। ताहम इंटेलिजेंस इत्तलात पर खड्डा मार्केट में छापा मारकर मगवी ताजिर को बाजियाब करा लिया गया है। दादू में एसटीपी के कारकुन आशिक रहमानी के कत्ल के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन की गई।
बशीर बिरहमानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद पर पुलिस की फायरिंग के नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जिनसे आशिक बिरहमानी जख्मों की ताब ना लाते हुए हैदराबाद जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया है। इत्तला मिलने पर सिंध तरक्की पार्टी, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की कॉल पर सिंध भर की तरह दादू जिला, मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह, जोही में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। लेडी हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की मरकजी रहनुमा शहनाज राजनी और खुर्शीद बेगम ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी 1,14,000 से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी करें। सखर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स मुस्तकिल ना होने के बाइस मुश्किलात से दो-चार हैं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने 2 जून को ऐलान किया था कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को चंद रोज़ तक मुस्तकिल कर दिया जाएगा, मगर ताहाल लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल नहीं किया गया। शहनाज राजनी का कहना था कि चंद मफाद परस्त लीडरों ने लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल कराने के लिए रकूम बटोरना शुरू कर दी हैं, मगर वो लेडी हेल्थ वर्कर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19 मई को जनरल बॉडी के इलेक्शन में मिसेस साजिदा अहमद को मरकजी सदर नामजद कर दिया गया है, जिनकी क़यादत में लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल कराने के लिए जद्दोजहद जारी है। उन्होंने कहा कि साबिक सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स बुशरा आराई ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के मफादात के बजाय अपने मफादात को आगे रखकर काम किया, तहम अब लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। जैकबाबाद में समेजा की जानिब से 81 अफराद पे कारोबार के लिए बतौर कर्ज 2,43,000 के चेक्स तकसीम किए गए। जैकबाबाद की यूसी दस्ती के 7 देहात के अफराद में कारोबार के लिए 30,000 रुपये फीस शख्स दिए गए हैं। चेक लाहौर के इंचार्ज एंटरप्राइजेस हफीजुल्लाह ने तकसीम किए हैं। इस मौके पर इंचार्ज ERO वली दादू आबिद अली सोंगलंगी ने खिताब करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद सैलाब मुतासरा इलाकों के अफराद की बहाली है, जिसके तहत लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कारोबार की तरगीब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये कर्ज अपने गांव में कायम कमेटी को हर महीने 300 रुपये करके वापस करना होगा, ताकि वापस की गई रकम से किसी और गरीब की मदद की जा सके। मीरपुर खास में पानी की किल्लत के खिलाफ एहलकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकर्रीन का कहना था कि सैकड़ों देहात पीने के साफ पानी और हज़ारों एकड़ फसलें पानी से महरूम हो गई हैं। मीरपुर खास के काश्तकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2 माह से ख्यारो शाख के पीछे हिस्सों में काश्तकारों को पानी फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन पीने के पानी से भी महरूम हो गए हैं, जबकि इस ज़राई पानी की किल्लत की वजह से 17,000 एकड़ ज़राई ज़मीन बंजर हो रही है। काश्तकारों का कहना था कि ज़मीन बंजर रेंजेस की मॉनिटरिंग के बावजूद इन्हें पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि डायरेक्टर केनाल की यकीन दहानी के बावजूद पानी की किल्लत बरकरार है। उन्होंने कहा कि सिंधड़ी खैराव शाह के 40 से ज़ायद वाटर कोर्सों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि बासर अफराद के वाटर कोर्सेज ये पानी की फराहमी की जा रही है। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 जुलाई 1970 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत ख़त्म करने के इक़दाम पर यौम सियाह मनाया गया। जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ 5 जुलाई को यौम सियाह के तौर पर होने वाली तकरीब में रहनुमा और कारकुनान ने अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधी। इस मौके पर मुकर्रीन ने जनरल ज़िया के इस गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अहद किया कि PPP के कारकुनान मुल्क की सलामती और जमहूरियत की बका के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद करते रहेंगे। सूबाई वज़ीर माहिगीरी और PPP हैदराबाद के ज़िला सदर जाहिद अली भड़गड़ी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करने का मकसद मुल्क को तबाह करना था, लेकिन PPP के बहादुर रहनुमा और कारकुनान ने जेलें काटने के साथ साथ कोड़े खाकर अपनी जानों के नजराने देकर मुल्क को बचाया और जमहूरियत को बहाल कराया है। उन्होंने कारकुनान के अपील की है कि आवाम से करीबी राबते में रहें ताकि PPP को मज़ीद मजबूत और मुनज़्ज़म किया जा सके। मुल्क भर की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टंडू अलायार में भी 5 जुलाई को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया और एहतजाजी रैलियां भी निकाली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से टंडू अलायार में भी 5 जुलाई 1977 के वाक़े के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। PPP के कारकुनान ने ज़िले सदर मखदूम मीमू अली की क़यादत में टंडू अलायार प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इस मौके पर कारकुनान ने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांध रखी थी। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि जनरल ज़ियाउल हक ने रात की तारीकी में मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया
اور آمریت کو جنم دیا ہے۔ اس موقع پر کارکنان آمریت مرد آباد اور جمہوریت زندہ آباد کے نعرے لگاتے رہے۔ مزید خبریں ہوں گی اس وقفے کے بعد۔ سندھ میں دہشت گردی اور لاقانونیت کے خلاف عوامی تحریک کے کارکنان نے حیدرآباد میں محبت سندھ ریلی نکالی۔ حیدرآباد میں دہشت گردی اور لاقانونیت کے خلاف نکالی جانے والی محبت سندھ ریلی سٹی گیٹ کے علاقے سے شروع ہوئی، جو شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی حیدرآباد پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سندھ میں سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل عام کیا جا رہا ہے، جس میں کراچی کے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر حکومت نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ٹھٹھہ میں ذوالفقار آباد کے نام سے نئی سازش تیار کی گئی ہے، جس میں غیر سندھیوں کو زمینیں الاٹ کی جائیں گی۔ یہ منصوبہ سندھیوں کے لیے کالا باغ ڈیم سے زیادہ خطرناک ہے، مگر سندھی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ ماتلی میں لنک روڈ کی تعمیر میں سرعام گھپلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سڑک کی تعمیر میں کچا پتھر استعمال کیا جا رہا ہے۔ عوامی شکایات پر میڈیا نے سڑک کا دورہ کیا تو ٹھیکیدار دھمکیاں دینے پر اتر آیا۔ ماتلی 0 پوائنٹ سے دندو شہر تک 12 کلومیٹر لنک سڑک کی تعمیر و مرمت میں محکمہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ قوانین کے پرخچے اڑاتے ہوئے کچے پتھر کے استعمال کے علاوہ سڑک کاپٹ کرنے کے بعد اس پر مٹی ڈال رہا ہے۔ ٹھیکیدار کی ناقص کارکردگی پر علاقہ مکینوں اور سماجی کارکنان کی شکایت کے بعد جب ماتلی پریس کلب کی ٹیم صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچی تو ٹھیکیدار اور اس کی ٹیم نے میڈیا نمائندوں کو رپورٹنگ سے روکا۔ ٹھیکیداروں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی چیف انجینئر اور سپروائزر تک کو مال کھلاتے ہیں۔ ادھر نوکوٹ کے علاقے جھڈو میں صفائی مہم کا آغاز ہو گیا ہے اور عوامی حلقوں میں اس سے خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی ہے۔ ٹی ایم او جھڈو کی جانب سے نوکوٹ ٹاؤن کمیٹی میں بڑے پیمانے پر سب آفس اور سینیٹیشن کے انچارج کے تبادلوں اور تقرریوں کے بعد دور دراز کے علاقوں میں پینے کے پانی کا نظام بہتر ہونے پر مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ واضح رہے کہ نوکوٹ کے علاقے میں گزشتہ 4 سال سے صفائی اور واٹر سپلائی اسکیم کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، تاہم دیرینہ مسائل حل کرنے پر شہریوں نے ٹی ایم او جھڈو اور سب آفس کے انچارج کی جانب سے شہر کے بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے اقدامات کو سراہا ہے۔ خبریں شامل کریں گے خیبر پختونخوا سے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات و نشریات میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ ناٹو سپلائی کو تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کو اعتماد میں لے کر بحال کیا جائے گا۔ پشاور یونیورسٹی میں کانفرنس ہال کی افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ناٹو سپلائی سے صوبے کے جس انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایف سی کو جس مقصد کے لیے بنایا کیا ہے اگر انہیں وہی ڈیوٹیاں دی جائیں تو بہتر ہوگا۔ کانفرنس ہال کا افتتاح صوبائی وزیر بشیر احمد بلور نے کیا۔ اس موقع پر اے این پی کے صوبائی صدر سینیٹر افراسیاب خٹب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سینئر وزیر نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی طلباء کو سیاست کے حوالے سے ایک ہفتے میں لیکچرز دینے کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ ہمارے ملک کے مستقبل اور حالات سے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پشاور یونیورسٹی تمام اداروں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دہشت گرد ملک و قوم اور اداروں کے دشمن ہیں۔ اور اب بات صوبہ بلوچستان کی۔ کوئٹہ پولیس نے علماء کرام اور 7 دیگر افراد کی ٹارگٹ ٹکلنگ میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن حامد شکیل نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تھانہ جنا ٹاؤن کے موبائل گشت پر تھی کہ ڈریم لینڈ ناکے کے قریب ایک مشکوک موٹر سائیکل سوار نے 3 افراد کے رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی کے بعد 3 ملزم جہانگیر حیدر شاہ، ندیم عباس اور کیسر عباس کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 پستول اور ایک موٹر سائیکل قبضے میں لے لی گئی ہے۔ ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی رہائش گاہ فیصل ٹاؤن بروری میں ہے۔ نشاندہی پر گھر پر چھاپہ مار کر وہاں سے 1 عدد موٹر سائیکل، ضروری دستاویزات اور شناختی کارڈ قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان نے کوئٹہ شہر میں سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے رہنما سلیم جدون، قاری جلیل مولوی عبدالکریم مینگل، حافظ عبدالباسط، فاروق پلنگزئی اور مولانا فیض اللہ قاری سمیت دیگر علماء کرام کو قتل کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔
खैबर से कराची तक फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।